Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and good morning to Karachiites. It's normally tough for people in Karachi to get going so early, but we see faces and we are still waiting for some more guests to come. Thank you, Ji. This is on behalf of the CEOs Club and the World CEOs Forum. I welcome all of you to this great morning where we will be inspired by some great leaders and their thoughts for us. The CEOs Club of Pakistan started about 1.5 decades ago by inking stories of all those people who made successes for themselves, for their businesses, and for our Pakistan at large. For many years, we kept shuttling between Karachi, Lahore, and Islamabad, trying to engage the Pakistani community to trade amongst themselves. But then we realized, once we went to UK for the first time, this was about 7 years ago, first time we went international, and then we thought, we need to not trade with 240 million people in Pakistan. We have the opportunity to interact, trade, do business for the good of our country with more than 7 billion people. And hence, the creation of the World CEO Forum came into existence. Today, your club, this is not Ijaz's club, this is not my club, this is everybody's club. We are here together. We need to journey together, and let's make Pakistan a better place and leave this beloved country into the hands of the next generation. For that, we need to do something better. As in Saab, I'm not going to complain, but for many of the indexes, we rank over hundreds. 100 से ऊपर का नंबर हमारा जाता है. हैप्पीनेस इंडेक्स ले लें, क्लाइमेट इंडेक्स ले लें, जितने भी इंडेक्सेस हैं सब में 100 से ऊपर का नंबर हमारा आ रहा है. The only good number, which is a bad cholesterol, was the number 2 in terrorism. So we have a spaghetti of issues, but we need, as leaders, to stand up, look reality straight into the eye, and act as soon as you can. I will not take much of the space, बट मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे और एहसन साहब के दरमियान हुआ है. वो मैं पब्लिक ज़रूर करना चाहूँगा. एहसन साहब मुझे काफ़ी सालों पहले लाहौर में एक दफ़ा मिले. मैं उनके साथ बैठा था. उन्होंने कहा आप अच्छा बोलते हैं. मैंने कहा शुक्रिया सर. कहते हैं आप आ जाएँ, हमारे पास एक चैम्पियन ऑफ रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया है. दिस इज़ अ थिंक टैंक. आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू ज्वाइन. मैंने कहा सर बट आई एम नॉट योर पॉलिटिकल सपोर्टर. डिस्पाइट ऑफ दैट, आप नॉर्मली बड़े आदमी का नंबर लेते हैं. इन्होंने कहा अपना नंबर बताओ. मैंने बताया सर को, और मैंने एज अ कर्टिसी घर जाके थैंक यू का नोट भेज दिया. शुक्रिया एहसन साहब, ऑनर टू मीट यू, एंड आई विल शेयर माई प्रोफाइल एज सून एज आई कैन. इन्होंने मुझसे मेरा प्रोफाइल मांगा था. मैंने आई टर्न्ड एन आई टू दैट. आई सेड ओके, इट्स जस्ट अ सोशल कॉल. आफ्टर 2 weeks ही राइट्स टू मी one word, how soon? And then I felt ashamed. Then I made up my profile. I asked my son to correct the English, and I then sent to Ehsan Saab. And from that day onwards, I really respected this man. और एक और मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगा एहसन साहब, with your permission. मैंने कहा सर, since I am not politically connected, so I have the liberty to say things which not many of your supporters will say. And I said, after having worked in an American company, we had a policy of not to flash. तो मैंने कहा सर आप लोग की जो बड़ी बड़ी जो हम सिंध में देखते हैं, कराची में देखते हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स जो 8-10 मकान की कीमत की तो गाड़ियाँ होती हैं, और 6-6, 8-8 प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं. मैं कहा सर ये ना करें. और मैं 1.5 महीने बाद एहसन साहब की, उन्होंने कुछ नहीं बोला. 1.5 महीने बाद आए, गो टू हिज ऑफिस अगेन. इन्होंने कागज़ मेरे सामने ऐसे करके फेंका कि ये देखो, उसमें उन्होंने अपनी गाड़ी वापस कर दी थी. सो आई थिंक
Ehsan Saab needs a... I just want to say, people say यार तुम लोगों से मिलते हो, बड़े बड़े लोगों से, तो अपना वक्त ज़ाया करते हो, टाइम ज़ाया करते हो, पैसे ज़ाया करते हो. I said, you know, I'm not here to boil the ocean. I'm here to boil my own cup of tea. तो एहसन साहब करोला में जाते हैं और मैंने अपने विटनेस किया है, इनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता. सो आई डिड माई शेयर. एहसन साहब, थैंक यू सो मच सर. और मेरी एक रिक्वेस्ट है जाते हुए सर, आपका सबका डिस्टेंस, इस्लामाबाद का फिज़िकल डिस्टेंस इज़ 1500 किलोमीटर्स, बट जो पॉलिसी मेकर है उनका कराची से 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस है. दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. और उसका एक तरीका भी बता देता हूँ मैं सर. आपका जैसे ऑफिस इस्लामाबाद में है और आप मुझे भी इनवाइट करते हैं अपने थिंक टैंक की मीटिंग्स में, वी कांट फ्लाई एवरी टाइम. सर बहुत से लोग कराची पाकिस्तान को चलाते हैं. आई एम कमिंग, मोलिकुल मौत हैं, आप मैं आ रहा हूँ, वापस छोड़ रहा हूँ. सर आप अपना एक, आपका प्लानिंग कमीशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का कैंप ऑफिसेस कराची में होने चाहिए. एंड यहाँ पे आपको एटलीस्ट महीने में एक हफ्ता कराची में गुजारना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस विच जनरेट्स रेवेन्यू. हाँ, थैंक यू सर. बीइंग अ कराचीite, always feel the pinch के we are not included. Sir, we don't live in Islamabad. It's a very utopian concept, living in Islamabad. Everything is beautiful. तो आपको लगता है हर चीज़ तो ठीक है, बट सर यहाँ पे ज़रा हमारे साथ सड़कों पे चलें तो जो इस्लामाबाद में टायर चेंज होता है 3-5 साल बाद, यहाँ पे 1 साल बाद चेंज हो जाता है सर. छोटी छोटी चीज़ें सर विच पिंचेस अस. पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है. वी जस्ट वांट टू से हमारा $40 बिलियन का एक्सपोर्ट है. हमारा तकरीबन इतना ही रेमिटेंस है. 240 मिलियन लोग मिल के 40 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तानी डायस्पोरा 10 मिलियन का भी नहीं है, वो 40 बिलियन आपको पैसे भेज देते हैं. तो या तो वो ज़्यादा भेज रहे हैं या हम काम कम कर रहे हैं. तो आई थिंक जैसे एहसन साहब कहते हैं, इकोनॉमिक सॉवरेंटी is only exports, exports and exports. This should be the topic in the minds and talks of every individual in this room and beyond. So with this, I have to get out because I've been shown the door. So thank you, Ehsan Saab, for coming. It's an honor always to have you in Karachi. Please do frequent us more. Thank you very much.